اور اب آندھرا پردیش کی خبریں تفصیل سے۔ ٹیپو سلطان شہید کی 223ویں یوم وفات پر شہر کے معروف شخصیت جمشید علی خان نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ٹیپو سلطان شہید نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا اعلان کیا اور ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ملک کو فرقہ وارانہ طاقتوں سے لڑنے کے لیے ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ شہر کرنول کی ایک مشہور شخصیت ہے جو تاریخ سے کافی وابستہ ہے، چونکہ آج ٹیپو سلطان کی یوم شہید ہے، یعنی ڈیتھ اینیورسری ہے، تو اس موقع پر ہم جناب جمشید علی خان صاحب سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹیپو سلطان کی تاریخ میں حیثیت کیا ہے اور ٹیپو سلطان کی وجہ سے کس طریقے کے ریولیوشنز جو ہے ہندوستان میں برپا ہوئے ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جناب جمشید علی خان صاحب، آپ کا استقبال ہے نیوز 18 اردو میں۔ آج جو ہے 4 مئی ہے، یعنی ڈیتھ اینیورسری ہے ٹیپو سلطان کی، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ آج کا دن ہندوستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے، یعنی آج ہی کے دن 4 مئی 1799 عیسوی میں شیر میسور ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے۔ آپ کو شہید ہوئے 223 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ شیر بر اعظم ہند کے 50 کروڑ سے زیادہ دلوں میں بسا ہوا ہے، حکومت کرتا ہے اور راج کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے پہلے پرائم منسٹر وزیر اعظم جناب جواہر لال نہرو صاحب اپنی کتاب دا ڈسکوری آف انڈیا میں لکھتے ہیں، اگر اس وقت شیر میسور ٹیپو سلطان کا ساتھ نظام حیدرآباد یا مراٹھاز دیے ہوتے تو آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی اور برٹش ہندوستان کا غلام ہوتا۔ ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ جناب رام ناتھ کووند صاحب کرناٹکا ودھان سبھا کے 60th اینیورسری فنکشن میں کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان واقعی میں شیر تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جنگ آزادی کے پہلے حکمران تھے جو شہید ہوئے۔ اس کا مطلب ہے ٹیپو سلطان از دا فرسٹ فریڈم فائٹر آف انڈیا۔ ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ڈاکٹر APJ عبد الکلام صاحب کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان دنیا میں میزائل ٹیکنالوجی کے فاؤنڈر تھے، اور وہ اپنی کتاب دا ونگس آف فائر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ناسا گئے تھے وہاں پہ ایک پینٹنگ تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک طرف میں ٹیپو سلطان ہے، ان کے بازو میں ایک راکٹ رکھا ہوا ہے، تو یہ چیز صاف ثابت کرتی ہے کہ ٹیپو سلطان واقعی میں میزائل ٹیکنالوجی کے ساری دنیا میں فاؤنڈر تھے۔ وجے واڑہ کے پرانے شہر میں واقع KBN کالج میں میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا۔ ریاستی وزیر روجا کے ہاتھوں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاح ہوا۔ اس دوران وجے واڑہ اور کنٹور کے تقریباً 300 سے زائد طلبہ نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ منتظمین نے بتایا کہ نوجوان نسل اور طلبہ میں خون کا عطیہ دینے سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے کیمپ رکھا گیا ہے تاکہ نوجوان نسل میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پروان چڑھ سکے۔ ఈరోజు మేము యూత్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ KBN కాలేజ్లో చేస్తున్నాము। ఈ కాలేజ్కి మేము 500 స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము। అట్లీస్ట్ 350 యూనిట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తర్వాత మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో సేకరించడం అలాని ప్లాన్ చేసుకున్నాము। ఇక్కడ కాలేజ్లో ఈ వసతి కల్పించి తర్వాత స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేసి KBN కాలేజ్ చాలా ప్రోత్సహించారు ఈ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడానికి। అలాగే మనకి గుంటూరు విజయవాడలో ఉన్న వివిధ కాలేజెస్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ ఈ క్యాంప్కి బ్లడ్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నారు। ریاست میں بڑھتے عصمت ریزی کے واقعات کے خلاف وجے واڑہ کے لینن سینٹر پر خواتین تنظیموں نے احتجاج کیا۔ احتجاجی خواتین تنظیموں نے آنکھوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر جگن حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجی خواتین نے جگن حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجی خواتین کا کہنا ہے کہ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے ریاست میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ریاست میں ٹیشا ایکٹ ہونے کے باوجود جرائم تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حکومت اور پولیس پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔
రాష్ట్రంలో ఇన్ని మహిళల మీద ఇన్ని అనర్థాలు జరుగుతున్నా కూడా ప్రభుత్వం గాంధార పాత్ర ప్రవర్తిస్తానే ఉంది తప్ప ఎక్కడా దోషులు కఠినంగా శిక్షించాలి, ఈ నేరాల అదుపుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలి, ప్రభుత్వంలో ఉన్న లొసుగుల్ని సరిచేయాలనే ఆలోచన ఎక్కడ ప్రభుత్వానికి లేదనే విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఇవాళ దాని సంబంధించి ఇన్ని అనర్థాలు జరుగుతున్నా హోంశాఖ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడే మాటలు చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయి. ఇవాళ అనర్థాల కారణం తల్లి అని చెప్పి ఆవిడ చెప్తారు, ఒక బాధ్యతాయుతమైన పోలీస్ ఆఫీసర్ గారేమో విక్టిమ్ క్యారెక్టర్ని అసాసినేట్ చేసి మాట్లాడతారు, ఇంకొకళ్ళేమో ఇష్టం వచ్చినట్లు మేము ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం, మేము ముందున్నాం, మేము చూస్తున్నాం అని చెప్పి ప్రభుత్వ భజన చేస్తాం. अवामी मसाइल के हल के लिए NTR जिला कलेक्टर दफ्तर में स्पंदना प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। जिला कलेक्टर की क़यादत में मुनक़िदा प्रोग्राम में अवाम ने अपने मसाइल से जिला कलेक्टर को वाकिफ़ करवाया। जिला कलेक्टर ने मसाइल से वाक़फ़ियत के बाद मुतल्लिक़ा अहदेदारों को अहकामात जारी किए। जिला कलेक्टर ने बताया कि ज़ेर इल्तवा मसाइल को भी बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अवामी मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने के अहकामात जारी किए हैं। Grievances, so in a befitting manner, it is happening in all district headquarters and divisional and mandal headquarters. So with respect to NTR district, as of now we have 183 grievances are pending. Out of that, some 2-3 departments are major pendency. You know very well that most of the grievances comes from the revenue related, survey related matters, so that our focus more on the revenue administration. For that, land purification is going on, so that the grievances in the revenue system will come down. करनूल में रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज की क़ुरा अंदाज़ी हुई और हज कमेटी के सदर श्री BS गौसल आज़म ने बताया कि हज 2022 के लिए जुमला 1417 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मरकज़ी हज कमेटी ने 1201 आज़मीन का कोटा मुख्तस किया है, जिसके मुताबिक आज़मीन की क़ुरानदोज़ी हुई है। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज को हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से 60,000 रुपये सफ़र हज से मुतालिक फ़राहम किए जाएंगे। 3 लाख से ज़ायद आमदनी वालों को 30,000 रुपये की माली इमदाद फ़राहम की जाएगी। क़ुरानदाज़ी तकरीब में मकामी रुकन असम्बली हफीज़ खां व दीगर भी मौजूद थे। 5 फर्जों में से एक हज का एक फरीज़ा है। उस जगह को जाने के लिए जो हाजी जो आंध्र प्रदेश हज कमेटी को जो एप्लीकेशन भेजे थे 1416 थे वो, उसमें से हमको सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से 1201 का कोटा मिला है। बाकी 215 लोग जो बच गए हैं, जो वो लोग ऐसा मत समझना कि हमें रिजेक्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह ऑल ओवर इंडिया के कहीं भी कहीं जो कोटा बच जाता है उसको हम लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और ये रिमेनिंग 215 लोगों को भी इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो बुला लेगा ज़रूर। हमारी तो कोशिश जारी रहेगी आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से। और गुज़िश्ता सालों के अंदर जो भी 2 सालों से जो हज नहीं था, अल्लाह का फजल व करम है जो इस मरतबा जो हज को जो अल्लाह की तरफ से बुलावा है, जो हज को हज बैतुल्लाह के लिए, और जो इंतज़ामात भी गुज़िश्ता जो भी चेयरमैन थे वो उनसे भी बेहतर इंशाअल्लाह बेहतर करेंगे। और हमारे आंध्र प्रदेश के 13 ज़िलों में से सिर्फ 2 ज़िले हमारे अनंतपुरम और चित्तूर के ये लोग जो बेंगलुरु से जाने वाले हैं, बाकी पूरे हैदराबाद से जाएंगे। जो हाजी हज को जाते हैं उनका ड्रा निकाला गया है, क्योंकि 1416 एप्लीकेशंस आए हैं और 1201 एप्लीकेशंस का जो है कोटा हमारे को सेंट्रल हज कमेटी दी है। तो करीब 215 एप्लीकेशंस को जो है इस बार मौका मिलना ज़रा मुश्किल है कोटे के हिसाब से देखें तो, बट वो लोग मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कोई भी हजरात अगर ड्रॉप होते हैं तो फिर से जो है कोटा वहाँ से लेकर आने की कोशिश हमारी आंध्र प्रदेश हज कमेटी हमारे चेयरमैन गौसल आज़म साहब के ज़ेर निगरानी में कर रही है। उसी तरीके से हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब जो माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत हमदर्दी से और प्यार से और मोहब्बत से पेश आते हैं। ये पहले कभी भी जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ जो है इस बार लेकर आए हैं हमारी गवर्नमेंट। कि 3 लाख रुपए से जिनकी इनकम कम है जो हाजी जा रहे हैं उनको 60,000 रुपये की जो है इमदाद और मदद जो है की जाए।
आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से हज 2022 के आज़मीन हज के लिए कुरान अंदाजी की गई। ये प्रोग्राम जिला करनूल के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन गौसुल आज़म के अलावा रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद से हज की तैयारियों से मुताल्लिक़ खुसूसी बातचीत की। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल में पहली बार कुरान अंदाजी का प्रोग्राम जो है मुनक़िद हुआ है। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब आए हैं। आइए हम तफसीली तौर पर मालूम करेंगे कि इस साल आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से हज के लिए किस तरीके के जो है इंतज़ामात किए जा रहे हैं, तो खुर्रा हुआ है, उसमें कितने आज़मीन हज को जो है मुंतखब किया गया है। सर, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आज जो कुर्रा अंदाजी हुई है उसमें टोटल कितने हाजियों को जो है सेलेक्ट किया गया है? सेंट्रल हज कमेटी के जो निगरानी में हमारी एपी स्टेट हज कमेटी उनके चेयरमैन हज कमेटी के जनाब शेख गौसुल आज़म साहब और मैं और हमारे करनूल के एमएलए हफीज़ खान साहब और एमएलसी इसाक साहब और कई मेंबरान और करनूल के उलमा अकराम के मौजूदगी में ये खुर्रा किया गया। और हमारे स्टेट से 1416 का एप्लीकेशन आ चुके थे। इसमें जो है सेंट्रल हज कमेटी के दौरान 1205 की परमिशन थी, तो आज वो 1205 की लिस्ट बनाई गई, 1201 की, और बाकी 215 को वेट लिस्ट में रखा गया। इंशाअल्लाह ये वेट लिस्ट के जो भी मेंबर्स हैं उनको भी इंशाअल्लाह परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि दूसरे स्टेट्स के जो है कोटा अगर कम हो गया तो वो कोटा हमारे स्टेट के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हैसियत में सेंट्रल हज कमेटी को रिक्वेस्ट करने वाला हूं, गुजारिश करूंगा कि ये लोगों को भी जो है परमिशन दें। और इसके अलावा जो भी खादिमुल उज्जा हैं वो भी 8 खादिमुल उज्जा, जिसमें 6 गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम हैं और 2 मेंबर्स, एक हज कमेटी के और एक वक्फ बोर्ड कमेटी के मेंबर, उनका भी आज तय किया गया। ये लोगों में भी 6 खादिमुल उज्जा को भी आज लॉटरी की गई। इंशाअल्लाह ये एक पूरे आवाम के लिए कि खुशखबरी है कि लास्ट 2 साल से कोविड की वजह से कोई जो है मुसलमान जो है हज पे नहीं जा सके थे। आज इस साल ये हज पे जाने की जो अंदाज़ा मिलते ही सब लोग खुश हो गए। और आज करनूल में ये खुर्रा करना ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं कल करनूल आ चुका था एंड वहाँ से हज कमेटी से फ़ोन आया तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे करनूल में, क्योंकि करनूल ज़िले में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे रखा गया। सब कितने अजला के लिए जो है ये कुरान अंदाजी रखी गई और सबसे ज़्यादा किस ज़िले से जो है आज़मीन हज जो है मुंतखब हुए? करनूल ज़िले से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 222 जो है हाजी मुंतखब किए गए हैं। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सर, और यहाँ जो है एम्बार्किंग पॉइंट वगैरह और फैसिलिटीज़ के ताल्लुक से वहाँ पर जो है किस तरीके के फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देने जा रही है? तो इस पे और थोड़ा इस पे थोड़े अभी फाइनल करने के हैं कहाँ से ये सब लोग फ़्लाइट पकड़ेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से देखे जाए करनूल वालों को हैदराबाद करीब पड़ता है, बट हमारे स्टेट के अभी विजयवाड़ा से लास्ट टाइम किया गया था 2019 में, तो कहाँ से करना है, कहाँ पे ये लोगों का सब इंतज़ाम करना है, ये पूरी हज कमेटी और दूसरे जो मेंबर्स हैं और डिप्टी सीएम साहब, मैं सब बैठ के पूरा इसका फाइनल करेंगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द सबको ये इंतज़ाम के बारे में सबको इत्तला दी जाएगी। हमारे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट जो है इम्तियाज़ अहमद साहब थे। उन्होंने बताया कि हज के लिए जो इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं वो माकूल इंतज़ामात किए जाएंगे, और जो कुरान अंदाजी है उसमें सबसे ज़्यादा ज़िला करनूल से जो है आज़मीन हज मुंतखब हुए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन रामासामी के साथ।